इससे कबल मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के काबिल सद एहतराम साबिक़ तालिब इल्म, शायर, मुजाहिद आज़ादी और रुकन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली मौलाना हसरत मोहानी जब अलीगढ़ या नैनी जेल में क़ैद बामशक्क़त की सज़ा काट रहे होते थे तो एक ही रौ में कभी सदा देते थे इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी कामिल, और कभी चक्की पीसते पीसते पुकार उठते थे हज़रत कृष्ण अलैहिर्रहमा या रसूलल्लाह। कृष्ण भक्ति में शराबोर उनका ये शेर देखिए कि हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाज़री, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा है करम खास। Our chief guest today, Professor D.P. Agarwal, also upholds such traditions of syncretism and interfaith understanding. He has held coveted positions like the chairman UPSC for 6 years and member UPSC. He was founder director of the Atal Bihari Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, joint educational advisor technical in the HRD ministry, and managing director of Educational Consultants India Limited, a Government of India PSU. He was project director for Indo-UK REC's project and led to REC's becoming an NIT. He also served as the national project director for a World Bank project on technician education. An academician to the core, he has been an active teacher and researcher at the IIT Delhi, where he was Professor Mechanical Engineering and Dean. As visiting researcher, he went to the Imperial College London and Cranfield University, UK. He has been conferred with honorary fellowships, Engineer of the Year Award by the Institution of Engineers, and an honorary DSc degree of the Jivaji University, Gwalior 2009. संस्कृत का एक श्लोक है, उद्धृत करना चाहूँगी। नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सुहृत्, नास्ति विद्या समाम वित्तम, नास्ति विद्या समाम सुखम. There is no friend, no companion, no wealth or no bliss as great as knowledge. A true knowledge seeker at heart, he covered major milestones in education and learning as he received his MTech and PhD degrees from IIT Delhi in mechanical engineering. But this journey began when in 1970 he graduated with honors in mechanical engineering from the Zakir Hussain College of Engineering Technology, AMD. Chief guest, Professor D.P. Agarwal. Honorable Vice Chancellor of the great university called Aligarh Muslim University, distinguished Pro-Vice Chancellor, very eminent guest of honors, many teachers and faculty of this great university, many seniors of mine, other alumni friends, young students. Today is a great day. When I stand here, I'm always honored. This is the third time that I have an opportunity to be a part of this group. But more than that, I'm humbled. And I learned this as I grew in my profession, as I grew in my life. All very distinguished guest of honors spoke about what Aligarh gives. Talk to any Ali, he would always say, Aligarh made me.
So I end by saying what I did achieve in life, and God has been very kind on me, and I owe this to my alma mater. This is सभी लोगों ने जो आज की थीम है उस पर चर्चा की। मैं शायद इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से मैं अलग अलग शहरों में अपने अलीगढ़ के मित्रों से चर्चा करता रहा हूँ, और मुझे समझने का मौका मिला कि हम इस वक्त एक ऐसी मुकाम पर हैं जब कभी अब मैं समझ सकता हूँ कि सर सैयद साहब के जहन में क्या बात रही होगी। उन्होंने इतना बड़ा एक इदारा तैयार कराया, पर सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने एक जागरूकता जो हमें पैदा की, और शिक्षा के लिए जो एक कौम को ऊपर उठना है उसके बारे में बात की। अब इसी को दोबारा सोचने की कोशिश करें। In particularly when you look at historical perspective, we learn a lot from history, but we also find stresses in history. The reverberating point today in society makes us think, is there a second need of a renaissance? And then I think, is it the role of university to look at what a community must do in what a community? बड़े मुल्कों की बातें करते हैं। हम सब जब अलीगढ़ आए छोटे छोटे परिवारों के थे, बहुत अमीर नहीं थे। आपने हमें एक ऐसा मॉडल दिया जहां हम सब कुछ सीख सकते थे। हमारे अंदर आपने एक ह्यूमैनिटी क्रिएट की, हमको एक ह्यूमन बीइंग बनाया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि अब समय है यूनिवर्सिटी उन लोगों की तरफ देखे जिन तक कोई जाना ही नहीं चाहता है? पुनः की चर्चा में करीब 100 लोग आए होंगे, जिनमें से कुछ साइंटिस्ट भी थे और व्यापारिक वर्ग भी थे। सबने एक बात कही कि जब महाराष्ट्र से किसी छोटे शहर का एक बच्चा आगे जाने की कोशिश करता है तो उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो मेरी पहली गुजारिश आपसे है कि आपने बहुत कुछ किया है विश्वविद्यालय के लिए, अपने लिए, शायद कौम के लिए भी। मैं जितनी बार यहाँ आता हूँ नए एक्सपेरिमेंट मुझे सुनने को मिलते हैं, पर जब आप ऐसी बातें सुनते हैं तो आप करीब अंदाज़ा करिए कि क्या कोई इसके हाथ को पकड़ने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय, ये यूनिवर्सिटी, ये इदारा उन सब लोगों का हाथ पकड़े जिनके पास कोई जाना नहीं। जो इस वक्त डरे हैं, घबराए हैं, वो कोशिश करें कि ऐसा कुछ न करें। हर रोज आप मोबाइल पकड़िए तो आपको ढेरों व्हाट्सएप आ जाते हैं जिनको पढ़ के आपको डर लगता है। और ख़ास तौर से जब मेरे ऐसे मित्र जो अच्छी अच्छी जगहों पे हैं उनको फॉरवर्ड करते हैं, दिल दहला वाली घटनाएं, किसको पकड़ लिया, किसको जेल में डाल दिया, किसको आज खाना नहीं मिला, कौन आप परेशान है। इस भय को कम करिए। और ख़ास तौर से जब हम 180 देशों में हैं, हमसे बड़ा कोई भी नेटवर्क नहीं है।
और हम चाहें तो एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कौम को बनाएगा, जो देश को बनाएगा, और जो मेरे भाई और मित्र और बहनें विदेशों में रहती हैं तो ग्लोब को भी बनाएगा। आज ग्लोबल मीट है, सबके सब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी की बातें करते हैं। 190 देश और भी हैं। क्या हम कोशिश करें कि उन 190 देशों को ले भी इस यूनिवर्सिटी में आए? वहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनको वो शिक्षा चाहिए जो सिर्फ ये यूनिवर्सिटी दे सकती है। हम सब ने ही कहा कि आपको ह्यूमन बनाती है, हम सब ने ही कहा कि हमको पीस में रहना सिखाती है, तो क्या उन लोगों को ज़रूरत नहीं है? तो क्या हम मिशन तैयार कर सकते हैं एलुमनाई का जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ लेके आए? और सर सैयद जी ने जो एक सपना हमें दिया, कल ही उनका दिन है, सर सैयद हम मनाएंगे, और आज के दिन हम जब मिल रहे हैं और पूरे देशों में हम मिले हैं, तो क्या हम कोशिश न करें कि इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो G7, G25 तक न रहे, बट ऐसे जीज में जाए जो हमसे भी नीचे है। मैं चाहता हूँ हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के चीफ एक अलग से चैप्टर क्रिएट करें अफ्रीकी राज्यों में, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज के एरियाओं में। ऐसे लोगों को इस शिक्षा की जरूरत है। पेंडेमिक आया, अलीगढ़ ने जितना काम किया शायद आप लोग नहीं समझते। हमारे वाइस चांसलर साहब क्योंकि उस विधा से हैं, सबको ही पता है कि यूपी में जो स्थिति हुई उसमें अलीगढ़ का योगदान उस वक्त, और जो सोच हमें मिली कि यदि हम अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ से पढ़े हैं, यादव साहब जी ने कहा कितनी भी मुश्किल आए हम एक रास्ता तलाश लेते हैं। अब जरूरत है ऐसे रास्ते की। लोगों ने रिपोर्ट पेश की, मैं उनको कोट नहीं करना चाहूँगा, पर पिछले कुछ दिनों पहले एक नई बात बहुत ही खास व्यक्ति ने कही कि हम 27% पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। उनमें से कौम के कितने लोग हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। वक्त ब वक्त मैं कहता रहा हूँ, और आज हमें अपॉर्चुनिटी है इस नई हाइब्रिड एजुकेशन के माध्यम से कि उन लोगों को जो अपने हाथ से काम करते रहे हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, स्कूल जाते नहीं, क्या हम एक सिस्टम तैयार करते हैं कि उनकी स्किल्स को सर्टिफाई करें? क्या हम अपने अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में रहने वाले एलुमनाई मित्रों से पूछ सकते हैं कि भाई आप कोशिश करें कि वो कुछ टूल्स, वो कुछ मंत्र आप लाएं, और जो जिन लोगों को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है उनको हम सर्टिफाई करें। और ये मैं बता सकता हूँ कि ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप लाखों को पार करें, करोड़ में पहुँच जाए, ये बहुत मुश्किल है। स्वस्थ आदमी का हाथ तो हर एक कोई पकड़ रहा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, पर स्कॉलरशिप की ज़रूरत है उस व्यक्ति को जो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहा है। सुना मैं उससे पूछा लोगों, सर ये बताइए कि आप ये बहुत सारी बातें करते रहते हैं, इनको करें कैसे? सबसे बहुत ही आसान तरीका इसका ये है कि जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है हम अपनी कौम को उसके साथ ले जाएं। ये इतना आसान रास्ता नहीं है। एक चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट से, मैम जानती होंगी, पिछले दिनों उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा साहब 120 नौकरियां ऐसी हैं जहां पिछले साल में किसी भी बच्चे ने जो इस्लाम धर्म को मानता है अप्लाई किया हो।
तो ये कैसा डर, क्यों? आप बच्चों को कहिए आए, आगे आए, दुनिया देखें। हम सब ने दुनिया देखी है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि 5 देशों में काम किया, और इस मंच में बैठे लोग भी देश विदेश गए। देश विदेश जाना अलीगढ़ की कल्चर से दूर जाने की बात नहीं है, पर अलीगढ़ की कल्चर को एनरिच करने का एक माध्यम है। और आज के दिन मैं चाहता हूं कि हमारा नेटवर्क, जो हर बैच का एक नेटवर्क बना हुआ है, मेरा 1970 इंजीनियरिंग का बैचमेट, रोज कोई ना कोई चर्चा। कल एक उन्होंने मुझे, दुखद बात है कि मेरे एक साथी जो मेरे बैचमेट थे, 3 दिन पहले उनकी डेथ हुई। उनके बेटे ने एक बहुत ही मार्मिक बात की कि साहब वो, उनका लगाव अलीगढ़ से इतना ज़्यादा था कि जब तक दिन में एक बार तराना नहीं सुनते थे वो सोते नहीं। क्योंकि इतना हमारा लगाव, हमारा कमिटमेंट है। तो मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि हम सब मिल के कौम को आगे ले जाएं। इतिहास में बहुत सारे समय आते हैं जब लगता है कि सब कुछ मिट गया, फिर एक नया सवेरा आता है। उस सवेरे की मुझे इच्छा है, मेरी चाहत है। मैं जब भी विश्वविद्यालय आता हूँ, मेरा घर है, मुझे आदर मिलता रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ज़रा भी मौका मिले मैं चला हूँ। उस वक्त मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं चेयरमैन यूपीएससी था या कौन था। अलीगढ़ ने एजुकेशन के मामले में इतनी उछालें ली हैं कि अब मुझे ये समझने में मुश्किल होती है कि कोई हमसे आगे भी जा रहा है, पर हमसे आगे जाएंगे। और उस दौड़ में अलीगढ़ की तरह से भाग लेंगे। एक और भी तरीका है, आप मेरे आगे, मैंने आपको लात मारी, गिराया, अलीगढ़ ने ये नहीं सिखाया। उस दौड़ में जाए, उस सवेरे की तलाश करें, उस आदमी की तलाश करें जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। बहुत सारी चीज़ें मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, इशारा आप समझते होंगे। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर।